पिछले सप्ताह समझौता एक्सप्रेस का जो ब्लास्ट 2007 में हुआ था, उसमें पंचकुला अदालत का फैसला आया था। कल जो उसकी विस्तृत जजमेंट थी वो सामने आई है, वो रिलीज़ की गई है और आज के कई समाचार पत्रों में छपी भी है। और 2007 के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो बार बार हमें सूचनाएं देता था कि कौन सही मायने में आतंकवादी हैं जो उस घटना में शामिल थे। उनके नाम भी थे। यूनाइटेड नेशंस प्रस्तावना में भी कुछ लोगों को आतंकवादी उसी आधार पे कहा गया था। लेकिन उस लाइन पे तहकीकात करने के बाद अलावा किसी प्रकार से, क्योंकि हिंदू टेरर की एक थ्योरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थ्योरी बनाई थी। अंत में तो हर मुकदमे में अदालत को निर्णय करना पड़ता है कि शहादत गवाहियां कितनी आई हैं, एविडेंस कितनी आई है, उसके बेस पे। शायद इसी का ही परिणाम है जो आज तक हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं, क्योंकि लोग इस प्रकार के शब्द पूरे समाज को आतंकवादी बतला देना कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये जजमेंट मैं देख रहा था और इसके जो उपयुक्त पैराग्राफ्स हैं अंग्रेजी में हैं वो हम लोग पार्टी की साइट पे भी डाल देंगे ताकि आपको मिल जाएं। इसमें जो न्यायाधीश जिन्होंने फैसला दिया है, मैं केवल 4-5 पैराग्राफ पढ़ देता हूं। As a corollary to the aforesaid discussion, this court is of the considered opinion that the prosecution NIA has miserably failed to prove the charges against the accused Nabha Kumar Sarkar, alias Swami Asimanand, Lokesh Sharma, Kamal Chauhan, etc. I have to conclude this judgment with deep pain and anguish, as a dastardly act of violence remained unpunished for want of credible and admissible evidence. There are gaping holes in the prosecution evidence, and an act of terrorism has remained unsolved. उसके अलावा a court of law is not supposed to proceed on popular or predominant public perception or public discourse of the day, but ultimately has to appreciate the evidence on record and arrive at a conclusion on basis of the relevant statutory provisions and settled law applicable thereto. In the present case, there is no evidence regarding any agreement to commit the crime amongst the accused persons. There is no evidence regarding any meeting of minds between the accused to commit a crime. No concrete oral, documentary or scientific evidence has been brought on record to connect the accused facing the trial with the crime in question. There is not an iota of evidence to make any motive on the part of the accused to indulge in the crime. Investigative agency, very strangely, has not even bothered to conduct a test identification parade of suspects. ये 2007-8 में जब उनको गिरफ्तार किया था, ये तब करनी चाहिए थी. However, again, prosecution has not brought an iota of evidence to establish such facts, neither any call detail record CDRs of any mobile phone, nor any other evidence has been brought. This court has not got an opportunity to look into a vital piece of evidence because the entries of the handwriting of passengers might have got compared with the handwriting signatures of suspects, thereby proving a vital clue of their involvement. ये भी नहीं किया इन्होंने. Again, no evidence on this regard has been brought on record. In the absence of any credible and admissible evidence, this court cannot put a stamp of approval on the version of the prosecution.
A criminal element belonging to any particular religion, caste cannot be protected as representatives, etc. बाद में उन्होंने अपनी उस पर कंक्लूजन्स दी हैं. इससे क्या निकलता है कि सारी इन्वेस्टिगेशन 2007-8-9 में हो गई. इन अक्यूज्ड को आपने 10-10 साल से जेलों में रखा हुआ है. उसके बाद आपने चार्जशीट फाइल कर दी. उसी चार्जशीट में जो गवाह थे, जो एविडेंस आपने ली, उसकी एविडेंस शुरू हो चुकी थी, ट्रायल चला. जो आपने आरंभ में गवाहियां बनाई थी और दस्तावेज दिए थे, उसी के बिहाफ पे चला. और जज ने कहा ये कोई एविडेंस नहीं है, इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस. यूपीए और कांग्रेस के कार्यकाल में जहां कोई एविडेंस नहीं है, वहां पूरे हिंदू समाज को कलंकित कर देना, हिंदू टेरर की एक थ्योरी पैदा करके, यह इतिहास में पहली बार हुआ है. और इस प्रकार से 3-4 मुकदमे इस तरह के बनाए, उनमें से एक भी टिक नहीं पाया. इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से यूपीए और कांग्रेस के नेतृत्व से है. और मैं मानता हूं कि समाज, और केवल एक समाज नहीं, सभी समाज उनको माफ नहीं करेंगे. मरने वाले तो आम लोग थे, इनोसेंट लोग थे. अब उनकी जान चली गई. जो सही मायने में कल्प्रेट्स थे, उनकी तरफ आप गए नहीं. मासूमों की जान चली गई. और हिंदू टेरर की एक राजनीतिक थ्योरी बनाने के लिए आपने गलत लोगों को पकड़ लिया. तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि जजमेंट के ये डिटेल्ड तर्क हैं इसमें दिए गए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. और इसलिए पार्टी इसको नेट पे डाल देगी आपकी सहूलियत के लिए. धन्यवाद. इस विषय से जुड़ा कोई अगर प्रश्न आप लोगों का तो पूछ सकते हैं. थैंक यू. बहुत देखिए, बहुत अच्छी बात है, लोग जाएं और इस बात को स्वीकार करें कि यही सही राम जन्म स्थान है. रविंद्र, सर, हिंदू टेरर की बात जो जयपुर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब थे, उसको कई सालों तक कांग्रेस उसको आगे बढ़ाते रही और आज भी चला. आपको लगा कि जो जनेऊ धारण करना, सरोवर जाना या फिर मंदिर जाना, उसी का प्रायश्चित है? देखिए, मैं प्रायश्चित नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका कितना विश्वास के साथ संबंध है और कितना पॉलिटिकल कन्वीनियंस के साथ संबंध है. देखिए, मैं उनके कोई जवाब नहीं देता. ऐसे आपके लिए कुछ लोग सीरियस होंगे, अब नए लोग जो राजनीति में आए, हम उन पर क्यों टिप्पणी करें. बहुत बहुत धन्यवाद. पूछो, चले जी, पूछो. सर, क्या ये माना जाए कि पूरी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह से हिंदू आतंकवाद का पूरा गढ़ा गया था? निश्चित रूप से ये हमारा आरोप है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू समाज को कलंकित किया गया, एक फर्जी थ्योरी बना के. और आज इसीलिए कांग्रेस इन फैसले जो अदालतों के आए हैं उसके बाद एक वक्तव्य नहीं दे रही. ये तो पूरे समाज से माफी मांगने का अवसर है उनके लिए. क्यों नहीं मांग रहे, मेरी समझ में नहीं आता. राकेश पीटीआई. Sir, the court has also said that the best evidence was withheld by the prosecution. What does it suggest, sir? The best evidence the court has said is, it said in the context that the forms by which you reserve your seats, the handwriting on those forms should have been compared with the handwriting of these accused, so that we could at least know that some of them or any of them traveled on the train. Even in 2007-8, they did not undertake this exercise. Obviously, when the best evidence is concealed, the presumption is that such evidence is not available. हिमांशु आज तक. मेरा सवाल आपसे ये है कि होम सेक्रेटरी थे आर के सिन्हा, उन्होंने सबसे पहले बोला था भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद. क्या उन्होंने उस वक्त
देखिए ब्यूरोक्रेट्स क्या बोलते हैं इस पे हमें टिप्पणी नहीं है, ये निर्णय तो सरकार में राजनीतिक स्तर पे होते हैं।